Next question is question number 10. A horizontal rod of mass 10 gram and length 10 centimeter is placed on a smooth plane inclined at an angle of 60 degree with the horizontal, with the length of the rod parallel to the edge of the inclined plane. A uniform magnetic field of induction B is applied vertically downward. If the current through the rod is √3 ampere, then the value of B for which the rod remains stationary on the inclined plane. This is the diagram. 60 degree angle, √3 ampere current, रॉड ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से रॉड रखा हुआ है. Magnetic field vertically downward, mass of the rod 10 gram, length 10 centimeter. A force acting on the rod in this direction, inclined plane के ऊपर, what is this force? mg sin theta. इसको वो बैलेंस करना चाहते हैं हम. इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स इज रिक्वायर्ड. मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इसमें कैसे सेट करना पड़ेगा? देखिए, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, करंट अंदर जा रहा है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? डाउनवर्ड, करंट अंदर, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो गई. अब अगर मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ लगेगा तो इसको सपोर्ट करेगा रॉड और फोर्स से नीचे आएगी. हमको करंट की डायरेक्शन जो है वो क्या करनी चाहिए? रिवर्स, डॉटवर्ड. अब अगर हम ऐसे लेंगे, सो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, करंट इज कमिंग आउट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा टोटल. इस मैग्नेटिक फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ काम करेगा, ये वाला, और ये इसको बैलेंस कर लेगा. तो क्या होगी? रॉड रुक जाएगी. तो फर्स्ट पॉइंट इज द करंट इज कमिंग आउट ऑफ द रॉड. यहां पे डॉटवर्ड होगी करंट, पहला पॉइंट. दूसरा, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? दैट इज इक्वल टू बी आई एल, एल इज 10 सेंटीमीटर, बी आई एल into sin theta. What is the angle between magnetic field, this, and current? 90 degree. करंट बाहर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डाउनवर्ड है, साइन 90 डिग्री. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. इस फील्ड का दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री. इस फील्ड का 60 डिग्री पर कौन सा कंपोनेंट होगा? इतना, cos 60. And this should be equated with mg sin theta. Theta is 60 degree. इसको सॉल्व करें. b into √3, 10 into -2 cos 60 half is equal to 10 gram. Gram should be converted into kilogram. g की वैल्यू 10 and sin 60 degree √3/2. Cancelled out. 10 करके -1, 10 cancel, -1, -1, -1, 2, 2, √3 cancel. What is the answer? 1 Tesla is the. Next question is type 4, question number 17th, 18th and 19th. 3 questions, sir. Set of 3 questions. The electrons in the beam of a television tube have an energy of 12 kilo electron volt. Electron volt means 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. The tube is oriented so that the electrons move horizontally from south to north. At this place, east, west, north and south. So electrons are moving from south to north means इस तरह से electron आ रहे हैं. So I can write it dot. This is the direction of electron. The vertical component of Earth's magnetic field points down. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ आ रही है. B has the value 5.5 into 10 to the power minus 5 Tesla. In what direction will the beam be deflected? देखिए, डिफ्लेक्शन के लिए we have got right hand rule. This is rule, but it is for positive charge or electric current force. For electron, you can use shortcut, you can use left hand rule, but this is not Fleming's left hand rule, है ना? क्या है आपका जो रूल है? बेसिकली वो कौन सा रूल है? Fleming's left hand rule है. And this rule is for positive charge, force on the positive charge or conventional current. So for electron, we can use right hand rule.
हम राइट हैंड एज अ शॉर्टकट हम राइट हैंड रूल इसका यूज कर सकते हैं. कैसे यूज कर सकते हैं? 4 finger points in the direction of magnetic field, it is vertically downward ऐसे. Electron is coming out, this is the direction ऐसे. What is the direction of the force? Towards east. So first answer आपका आ गया, the direction of the force, it is eastward. C is correct answer. 18th is, in the above problem, what is the acceleration of the given electron? इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है ये निकालिए. That is equal to B Q, charge of the electron, and what is the velocity? Velocity आपके पास में नहीं है, but kinetic energy है, so you can calculate, equate it with half mv square. Mass of the electron कितना? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg into v square. From here you calculate v, put it here, b q v sin 90, because इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है और फील्ड नीचे की तरफ है, 90 डिग्री का एंगल है. फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू इट्स एक्सेलरेशन. कैलकुलेट A. V is under root of 2 into 12 into 10 power 3 into 1.6 into 10 power 19 upon 9.1 into 10 power 31. सॉल्व करिए. सो इसको अप्रोक्सीमेशन किया मैंने, 12 into 2 24, 25 का कितना होता? 5. तो अप्रोक्सीमेट में निकाल रहा हूं 5. 1.6 से एक डेसिमल हटा के नीचे 10 डाल दे, 16 का रूट 4 अपॉन 9.1 को 9 ले लो रूट 3, और यहां से ये 10 के पावर सब रूट के बाहर निकालिए. सो इट इज, कैंसिल करिए, 2 पावर्स कैंसिल करिए, बचेंगे मेरे पास 17 पावर्स, 10 टू द पावर 7, करीब करीब 20/3. एक डेसिमल कम कर लीजिए. व्हाट इज इट? 6.5 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी. नाउ यहां पुट करिए इस पॉइंट पर एंड कैलकुलेट एक्सेलरेशन नाउ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. इसको भी रफली सॉल्व कर सकते हैं. A is equal to 5.5 into 10 to the power minus 5, 1.6 10 to the power minus 19, velocity 6.5 into 10 to the power 7 divided by 9.1 into 10 to the power minus 31 is coming as nearly 6.32 into 10 to the power 14 meter per second square. Next part is, What is the deflection of the beam? देखिए इलेक्ट्रॉन की बीम ऐसी आ रही थी, फोर्स लगा इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स ईस्ट, इसका मोशन होगा पैराबोलिक और ऐसे घूमेगी बीम, है ना. Whenever any force that exerts on the body which is perpendicular to its initial motion, then the path is parabolic, तो ऐसे घूमेगा. तो ये जो यहाँ पे आ गया, इतने दूर चले, ये जो डिफ्लेक्शन है ये आपको बतलाना है कितना होगा. अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, इलेक्ट्रॉन की बीम ऐसे डिफ्लेक्ट हुई मान लो, so from this direction this is parabolic path, ये आपको y की वैल्यू बतलानी है कितनी होगी. so what is the acceleration in this direction? ये भी आपने निकाला. इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? it is 0. so what is y? s is equal to ut plus half a. what is a? 6.32 into 10 to the power 14 टी स्क्वायर. आपको ये बतलाना है कितनी देर तक वो बीम इतने फोर्स को एक्सपीरियंस करती है. ये हमको दिया नहीं है. फिर क्या करेंगे? व्हाट इज द 19th क्वेश्चन नंबर? इन द अबव क्वेश्चन हाउ फॉर विल द बीम डिफ्लेक्ट मूविंग 20 सेंटीमीटर. ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. सो इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी? इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी ना इसके पास, कितनी थी? 6.5 into 10 to the power 7. इस वेलोसिटी से 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? दिस टाइम यू शुड पुट हियर एंड y इज योर आंसर. हाफ 6.32 10 to the power 14. t की जगह पर आपको रखना है 20 into 10 to the power minus 2 divided by 6.5 into 10 to the power 7 और इसका कर दीजिए स्क्वायर. ये आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली, इट इज कमिंग एज, चेक करिए, 3 मिलीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28.
at a certain place the angle of dip is 50 degree and the horizontal component of earth's magnetic field is 0.15 टेस्ला। देखिए होता क्या है, जैसे ये जगह है, इस प्लेस में मान लो लाइंस ऑफ फोर्सेस अर्थ के कारण जो चलती हैं वो कैसी होती है, थोड़ा सा हिंट कर दूंगा मैं। अर्थ इज समथिंग लाइक दिस, अपने मेन प्लेन से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई होती है। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल एक्सिस, एंड इसकी थोड़ी सी अलग हटके 17 डिग्री से अलग मैग्नेटिक एक्सिस होती है। इसकी मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ थोड़ी सी अलग होते हैं। जिस प्लेस पर ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है उस प्लेस पर मैग्नेटिक साउथ होता है, जिस प्लेस पर ज्योग्राफिक साउथ होता है उस प्लेस पर मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे निकलती हैं और ऐसे चलती हैं। अब किसी भी प्लेस पर जब कोई भी पर्सन खड़ा होता है, मान लो यहां पे अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, जैसे हम खड़े, तो हमारे लिए लाइंस वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल परफेक्ट नहीं है, बल्कि कुछ एंगल पर झुकी हुई है। जैसे इस फ्रेम को आप उठा के लाइए तो यहां पे आप देखेंगे, मान लीजिए, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस आर समथिंग लाइक दिस, दे आर नॉट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, दे आर नॉट परफेक्टली वर्टिकल। मैग्नेटिक पोल्स पर लाइंस आर परफेक्टली वर्टिकल। मैग्नेटिक इक्वेटर पे, यहां पे अगर कोई पर्सन जमीन के ऊपर खड़ा है तो कैसे दिखाई पड़ेगा, ऐसे, उसके लिए लाइंस जो होंगी वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल दिखाई पड़ेंगी। सो एट अ प्लेस, जैसे इस प्लेस पर यहां पे दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, this is the vertical direction, let the lines of forces are this, so horizontal से जो angle lines of forces बना लेती हैं, this is called angle of dip, इसको बोलते हैं नमन कोण। नमन का मतलब होता है झुकना, झुकने का मतलब है horizontal से लाइन जितनी झुक जाती है, that is called angle of dip. This is called total magnetic field due to earth. If you drop the perpendicular here, this component is called horizontal component of earth's magnetic field, and इस magnetic field को जब आप vertical direction में resolve करते हैं, this is called vertical component of earth's magnetic field. So what is BH? BH is obviously B cos theta, where theta is the angle of dip. What is B vertical? It is equal to B sin theta. By this triangle, this square plus this square is equal to this square. We can write one more formula. B square is equal to BH square plus BV square. इन दोनों को डिवाइड कर देंगे आप किस तरह से, B vertical upon B horizontal sin theta upon cos theta. This will give tan theta. ये आपके अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बेसिक फंडामेंटल रूल। क्वेश्चन नंबर 28 इज, एट अ सर्टेन प्लेस द एंगल ऑफ डिप इज 50 डिग्री एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड इज 0.15 टेस्ला। अ बीम ऑफ प्रोटॉन इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, and horizontal component of magnetic field is given, it is given as B. अगर टोटल फील्ड जितनी होगी भी, मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में अगर आप ये निकालते हैं, दिस इज द टोटल फील्ड, दिस एंगल इज गिवन एज 50 डिग्री, सो व्हाट इज BH? BH is total B of cos 50 and one is vertical field, total B of sin 50. But protons इस फील्ड के पैरेलल मूव करेंगे, so no force is exerted by the vertical component of the field. ये बेकार है, only perpendicular component is applicable here. So what is the force? Force is B. If it is horizontal component, Q, charge of the electron, proton, same, velocity 3 into 10 to the power 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दीजिए मीटर पर सेकंड में, एंड इट इज साइन 90 डिग्री, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से व्हाट इज द एंगल मेड, 90 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। इट इज कमिंग एज 7.2 into 10 to the power minus 15 न्यूटन इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कंप्लीटेड। Any doubt? Sir, I have a doubt. Which question? The ninth question. Ninth question number, type 4? Yes, sir. Yes, ninth question number is, a neutron, a proton
an electron and an alpha particle enters a region of uniform magnetic field. This is the magnetic field given and तीन टाइप के particles इसके अंदर एंटर किए हैं 1, 2, 3 and 4 A, B, C, D. This is the diagram given. Very important question it is. With equal velocities, all they are having same velocity v. The magnetic field is perpendicular to the paper and directed into the paper. The tracks of particles are labeled in the figure. The electron follows the track. इसी के कंटिन्यूएशन में 10th, 11th, 12th में चारों पार्टिकल का पाथ पूछा है. मैं आपको चारों का पाथ निकाल के बतलाऊंगा. देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, अंदर की तरफ. यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ये सेट कर दो. फिर सारे पार्टिकल इनिशियली यहां पे देखिए आप ऊपर की तरफ निकले हैं, ऑल पार्टिकल्स. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपवर्ड. दिस इज फॉर पॉजिटिव चार्ज. तो पॉजिटिव चार्ज विल फील अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन. तो आप इन दोनों का साइन डिसाइड कर दो. दिस इज प्लस, दिस इज प्लस. न्यूट्रॉन इज दिस, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सीधे सीधे ये चला गया. दिस इज न्यूट्रॉन. एंड राइट हैंड फॉर नेगेटिव चार्ज आई विल वेरीफाई दिस अपवर्ड. ये फोर्स लग रहा है तभी तो टिल्ट हो गया, ऐसे फोर्स लग रहा था तभी टिल्ट हो गया. दिस इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. नेगेटिव इकलौता कौन है, इलेक्ट्रॉन है. सो यहां आप लिख दीजिए D इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन, C इज न्यूट्रॉन. अब इन दोनों में डिसाइड करना है कि कौन प्रोटॉन है, कौन अल्फा पार्टिकल है. ये टर्न ले लिया, शार्प टर्न ले लिया. इसकी ट्रेजेक्ट्री जो होगी अगर घूमेगा तो कम होगी. ये लंबा टर्न लेगा, घूमेगा तो क्या होगा, इसकी रेडियस ज्यादा होगी. रेडियस से आप पता कर लोगे व्हाट इज रेडियस, mv अपॉन bq. व्हाट इज द रेडियस, मास. फॉर प्रोटॉन mass is 1.67 into 10 to the power minus 27. वेलोसिटी तो दोनों की सेम थी, b दोनों के लिए सेम था. व्हाट इज चार्ज, चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज 1.602 into 10 to the power minus 19. हमको सिर्फ गैस करना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए. फिर अल्फा पार्टिकल के लिए व्हाट इज द चार्ज ऑफ द अल्फा, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स, 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स, 4 टाइम्स 1.67 into 10 to the power minus 27. Velocity is same, b is same. What is the charge, 2 protons, 1.6 10 to the power minus 19. यहां पे आप देखोगे तो ये एक 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको. ये चीज तो प्रोटॉन के लिए भी सेम है, देखना यहां पे 2 आ रहा है, मींस रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, I can write here for this question, radius of alpha particle is radius of 2 times that of proton. अब इसमें देखिए कौन प्रोटॉन है, कौन अल्फा है. जिसकी रेडियस ज्यादा है वो कौन है, अल्फा है. जिसकी रेडियस कम है वो कौन है, प्रोटॉन है. तो योर आंसर इज व्हाट, A is proton, B is alpha, C is neutron and D is electron. Next question is Type 5, question number 3. An electron moves in a circle of radius 10 meter. एक इलेक्ट्रॉन 10 मीटर के सर्कल में मूव कर रहा है. At a constant speed of v is given as 2 into 10 to the power 7 meter per second. With its plane of motion normal to the magnetic flux. Say it is crossword, अंदर जा रही है और ये इलेक्ट्रॉन का मोशन है. What is the field, 10 to the power minus 5 Tesla. What value does from this set of figure give for the specific charge of the electron? आपको Q by M निकालना है, कितना होगा. तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv अपॉन bq. v upon, in terms of specific charge you should rewrite this equation as radius is equal to v upon b into specific charge is this. यही आपको निकालना है. What is q by m? This is equal to v, velocity 2 into 10 to the power 7 meter per second, correct unit, divided by b 10 to the power minus 5 Tesla. And what is r? Radius is 10. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे अपन. एक 10 से एक पावर गई 4, 4 ऊपर जाके ऐड हो गई. इट इज 2 into 10 to the power 11 कूलम्ब
per kg is the correct answer. Correct answer is delta. Next question, fourth one. An electron under the action of a magnetic field moves in a circle of 2 centimeter. Radius at a speed of 3 into 10 to the power 6 meter per second. If a proton were to move in a circle of the same radius in the same magnetic field, then its speed will be what? देखिए दोनों जब मूव करेंगे इनका मतलब क्या है? अगर एक ही सर्किल में मूव कर रहे हैं इसका मतलब है इनके मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल है, तभी तो क्या है, एक ही फोर्स है, इसीलिए एक ही रेडियस मेंटेन करके रखे हुए हैं. या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेडियस फॉर इलेक्ट्रॉन इज सेम एज रेडियस फॉर प्रोटॉन, mv अपॉन bq for electron is equal to for proton. इस तरह से इक्वेट कर दीजिए. B दोनों के लिए सेम था. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Velocity of electron 3 into 10 to the power 6 meter per second. Charge of the electron एंड चार्ज ऑफ द प्रोटॉन तो सेम होता ही होता है, ये तो अपने वैसे कैंसिल हो जाएगा. सो डायरेक्टली मैं इक्वेट कर दूंगा, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 into 10 to the power minus 27 kg और V of P यहां से कैलकुलेट कर लीजिए. दिस इज 9.1 into 10 to the power minus 31 into 3 into 10 to the power 6 divided by 1.67 into 10 to the power minus 27, and this much meter per second will be the answer. Simplification, and it is coming as 1.6 into 10 to the power 3 meter per second. Next question is question number 12. A proton and a deuteron. प्रोटॉन कौन होता है? इसका मास होता है प्रोटॉन का, मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. इसका चार्ज कितना होता है प्रोटॉन का? 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. What is deuteron? Deuteron means one proton and one neutron. Nucleus of deuterium is deuteron. इसका मास कितना होता है? 2 times, क्योंकि इनका मास नियरली सेम है, तो 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. What is the charge of the deuteron? एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो चार्ज लेस है, 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Proton and deuteron enter in a uniform magnetic field perpendicularly with the same period. Proton takes 25 microseconds for 5 revolutions. आपको पीरियोडिक टाइम निकालना है, तो यहां से आप टाइम पहले निकालो, उल्टा चलेंगे. 5 रिवॉल्यूशंस के लिए कितना टाइम? 25 माइक्रोसेकेंड. 1 रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम? 25 upon 5 microsecond. That means time period of revolution of the proton is 5 microsecond. You have to find out the time period for deuteron. टाइम पीरियड का फॉर्मूला डाल देते हैं. टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई m अपॉन bq. प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन. टाइम पीरियड फॉर ड्यूट्रॉन 2 पाई m अपॉन bq. It is for deuteron. Just divide the two. B and B, 2 pi and 2 pi cancel out. Tp upon Td is equal to, it is mp upon qp multiplied by qd upon md. Just put the respective values given. That is equal to 5 microsecond for proton divided by time period for deuteron is equal to, या मैं डायरेक्टली यहां कर सकता हूं शॉर्ट में. मास ऑफ द प्रोटॉन को अगर मैं m मानूं तो मास ऑफ द ड्यूट्रॉन कितना होगा? 2m. चार्ज दोनों का सेम होता है, m कैंसिल आउट, 2 ऊपर लेके जाइए. टाइम पीरियड फॉर ड्यूट्रॉन इज 5 into 2, 10 सेकेंड इज द आंसर. 13th question number. An alpha particle is moving in a circular path of radius 0.45 meter.
radius is given as 0.45 meter, field B is given as 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला भी बोलते हैं, speed is 2.6 into 10 to the power 7, period of revolution formula 2 pi m upon bq, 2 pi की वैल्यू 3.1415, मास कौन सा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, 4 times 1.67 into 10 to the power minus 27 kg mass, 2 protons plus 2 neutrons, B 1.2 Tesla multiplied by charge 2 protons का charge 1.602 into 10 to the power minus 19 कूलम। इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या आंसर आ रहा है, 1.1 into 10 to the power minus 7 second, C is correct answer। 16th question number, what is the cyclotron frequency? cyclotron frequency एक इंस्ट्रूमेंट होता है, डिवाइस है साइक्लोट्रॉन, उसकी फ्रीक्वेंसी, बाकी यहां पे हमको सिर्फ फॉर्मूले की जरूरत है। टाइम पीरियड कितना होता था 2 पाई m अपॉन BQ, फ्रीक्वेंसी इसका रिवर्स। इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया है, व्हाट इज चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. What is the magnetic field applied, 1 into 10 to the power minus 4 Weber per meter square divided by 2 pi, pi की वैल्यू डाल सकते हैं 3.1415 and m mass 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। हालांकि ये साइक्लोट्रॉन में मुश्किल होता है क्योंकि मास इंक्रीज हो जाता है, पर अभी क्वेश्चन करने के लिए हम इतना डाल सकते हैं। आपको बताना है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, इट इज कमिंग एज 2.8 into 10 to the power 6 साइकिल्स पर सेकेंड। 10 to the power 6 को क्या बोलेंगे, मेगा, इट इज मेगा साइकिल्स पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। Next concept is, refer the booklet, page number 2, left column, the ratio of radii of circular path if two charged particles are thrown in perpendicular magnetic field with equal velocity, equal momentum, equal kinetic energy। इसमें हमको R1 upon R2 निकालना है, ये शॉर्टकट है, देखना। In each case we have to find out this। First case, two particles are thrown in perpendicular magnetic field, एक perpendicular magnetic field में दो पार्टिकल फेंके जा रहे हैं। पहली बार इनकी वेलोसिटी सेम होती थी, v1 is equal to v2 होता था इस कंडीशन में। What is v1 फॉर्मूला, v1 का वैल्यू कितना होता है, मैं भूल गया v1 मान लीजिए, तो मैं इक्वेट कर सकता हूं मैग्नेटिक फोर्स BQV is equal to सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर, एक कैंसिल एक कैंसिल, इट इज बी क्यू आर अपॉन एम। बी दोनों के लिए सेम है, मैग्नेटिक फील्ड इज सेम फॉर बोथ द पार्टिकल्स, Q1 R1 M1 दैट इज इक्वल टू फॉर सेकेंड पार्टिकल B Q2 R2 M2, B and B cancelled out. What is R1 upon R2 short formula, this is equal to M1 is transferred here, it is M1 upon M2 multiplied by Q2 upon Q1। अगर आप इसको मेमोराइज कर सके वेल एंड गुड, नहीं तो यहां से आप डिराइव कर सकते हैं। सेकेंड टाइम दे आर थ्रोन विथ इक्वल मोमेंटम। इक्वल मोमेंटम का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम की वैल्यू कितनी होती है, यहां से आप निकाल सकते हैं mv, mv इज कॉल्ड मोमेंटम, मोमेंटम इज bqr, bq1 r1 इज इक्वल टू फॉर सेकेंड पार्टिकल bq2 r2, दैट इज b एंड b कैंसिल्ड आउट, r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू सिंपल q2 अपॉन q1, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। थर्ड इज they are moving with equal kinetic energy. What is kinetic energy formula, b square
q square r square upon 2m for first particle. For second particle, b square q square r square upon 2m. b square will cancel out, 2 and 2 cancel out. r1 square upon r2 square is equal to q2 square upon q1 square. ये ट्रांसफर यहाँ क्या, m1 upon m2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए. What is r1 upon r2? Ratio of their radii taking root, it is q2 upon q1 and root के अंदर m1 upon m2. Most important. Note is there, if the radius of the circular path is more, radius अगर ज्यादा होगी, then the trajectory will be less curved, and if the radius is less, then the trajectory will be more curved. For example, an electron and a proton are projected at right angles to a uniform magnetic field with the same kinetic energy, then the electron trajectory will be more curved than प्रोटॉन ट्रेजेक्ट्री. कैसे निकाला, देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज तो सेम है. से 1 फॉर इलेक्ट्रॉन 2 फॉर प्रोटॉन, देन इट इज अंडर रूट ऑफ 1 फॉर इलेक्ट्रॉन 2 फॉर प्रोटॉन. डेफिनेटली मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. कैंसिल कर दीजिए. सो रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, रूट ऑफ 1836 टाइम्स रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में इफ यू प्रोजेक्ट बोथ द पार्टिकल साइमल्टेनियसली, सो प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री अगर कम है रेडियस, तो प्रोटॉन की ट्रेजेक्ट्री क्या इससे ज्यादा होगी. इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन बनेगा और ये प्रोटॉन बनेगा. इस तरह से आप बता सकते हैं. इनकेस रोटेशन उल्टा उल्टा होगा उनका, एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, बिकॉज देयर चार्जेस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो इस तरह से लेकिन आप बता सकेंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स इज perpendicular to the direction of velocity, so it can change only the direction of velocity, not its magnitude. क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को कुछ नहीं कर सकती है. मैग्नीट्यूड जितनी पार्टिकल से, जितनी स्पीड से पार्टिकल आया था उसी से वो गोल गोल घूमेगा, बस उसकी डायरेक्शन बदल रही है, ओनली मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगी, स्पीड नहीं चेंज होगी पार्टिकल की. मैग्नेटिक फील्ड नाइदर कैन एक्सेलरेट नॉर कैन डी एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल. उसका काम है सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना. मैग्नेटिक फील्ड कैन चेंज ओनली द डायरेक्शन ऑफ चार्ज. The questions of this category, equal velocity, equal linear momentum and equal kinetic energy, most important category. Question number 24th, page number 10 पे देखिए. An electron and a proton having mass me and mp respectively enter the region of a uniform perpendicular magnetic field with the same velocity. Their velocities are same. So ve is equal to vp, जैसे आप बोलेंगे. The ratio of radii are, रेशियो ऑफ रेडियाई का फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला याद नहीं रहता जनरली, तो हम क्या करें, वेलोसिटी के टर्म्स में इक्वेट कर लें. व्हाट इज द फॉर्मूला, बी क्यू वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर. एक वेलोसिटी कैंसिल, बी भी कैंसिल हो जाता है, क्या आएगा, इट इज क्यू आर इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ रेशियो ऑफ रेडियाई आर इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी अपॉन बी क्यू. सो मैं यहां लिख सकता हूं एम वी अपॉन बी क्यू डिवाइडेड बाय एम वी अपॉन बी क्यू फॉर फर्स्ट पार्टिकल, फॉर सेकेंड पार्टिकल, b1 b2 कैंसिल आउट, m1 अपॉन m2 बिकॉज वेलोसिटी इज सेम. सो आप लिख सकते हैं इट इज q2 अपॉन q1. नाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए चार्ज भी सेम होता है, m1 इलेक्ट्रॉन m2 proton. What is the ratio, me upon mp? Beta is the correct answer.
Next question number 28. An electron and a proton of equal momentum enter a uniform magnetic field normal to the lines of force if the radii of curvature are RE and RP. So equal momentum की condition में क्या formula होता है? Mass into velocity is same. What is the ratio? It is Q2 by Q1. Charges are also same. What is the ratio? 1:1 in this condition. इक्वल काइनेटिक एनर्जी वाले क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है इसकी. देखिए, आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 31. अ प्रोटॉन एंड अ ड्यूट्रॉन. प्रोटॉन मास कितना प्रोटॉन का? लेट इट इज m. चार्ज कितना? q. ठीक है, प्रोटॉन के लिए मैं इस तरह से कैलकुलेट कर लेता हूं, इट इज इजी. फॉर ड्यूट्रॉन व्हाट इज द मास? 2m. व्हाट इज द चार्ज? q. ओके. Enter a magnetic field of magnetic induction B moving at right angles to it. They describe circles. If RP and RD be the radii of curvature, proton and deuteron, what is the formula? It is Q2 upon Q1 into root of M1 upon M2. ये फॉर्मूला होता है. Q दोनों के लिए सेम है, कैंसिल. मास का क्या रेशियो है? Mass of proton, mass of deuteron. Mm cancel out. What is this answer is? Answer is RP upon RD is 1:√2. Most important question it is. Beta is correct answer. Next question is question number 39. A charged particle having kinetic energy K enters into the region of a uniform magnetic field between two plates P and Q as shown in the figure. The charged particle just misses hitting the plate Q. The magnetic field in the region between the two plates is. This is the charged particle. उसको थ्रो किया जा रहा है यहाँ पे. इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड है coming out. If it is positive charge, what is the direction of the force? This is the field. सबसे पहले सेट करिए. चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये रहा चार्ज पार्टिकल. व्हाट इज द फोर्स? डाउनवर्ड. सो इस फोर्स के कारण से पार्टिकल इस तरह से आएगा. और ये कितनी भी बड़ी प्लेट हो, ये पाथ कौन सा होगा? सर्कुलर. यहां से इस डायरेक्शन को आ रहा था टेंजेंशियल, और फिर टर्न होते होते अगर वो यहां पे आते 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 जस्ट इस तरफ 1/4 सर्कल अगर ये बन जाएगा इस तरह से, सेंटर ये रहा इसका. एंड व्हाट इज द रेडियस? रेडियस इज सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स, इट इज ए. तो वो क्या करेगा? इस तरह से मूव करने लग जाएगा. सो जस्ट बच जाएगा हिट करने से. व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल? इट इज ए. सर्कल के रेडियस का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? R इज इक्वल टू mv ऑन bq. आपसे B पूछा हुआ है व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. योर आंसर इज mv अपॉन Q into A. But V is not given. In place of V, kinetic energy is given. What is kinetic energy? Half mv square 2k upon m under root. This is velocity. Replace here. B answer is m into under root of 2k divided by under root of m divided by QA. रूट m से एक रूट यहां कैंसिल हो जाएगा. व्हाट इज द आंसर? आंसर इज अंडर रूट ऑफ 2mk अपॉन QA. दिस मच इज द मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40th क्वेश्चन नंबर. अ पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस q एंड मास m मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड EI. EI मीन्स I is the unit vector of x direction. That means the field exists only in x direction. This is the direction of electric field. And here is charge Q. This is charge Q, for example. Uniform magnetic field BK. K is the unit vector of I, J, K हम बोलते हैं ना. J is the unit vector of y direction. K is the unit vector of z डायरेक्शन. सो z डायरेक्शन ये वाली होती है बाहर की तरफ आती हुई. व्हाट इज इट डिनोटेड बाय? डॉट. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? डॉटवर्ड, कमिंग टुवर्ड्स यू लाइक दिस. फॉलोज ट्रेजेक्टरी फ्रॉम P to Q. P is this point and Q is this point. यहां से यहां तक वो
मूव करता हुआ जा रहा है पार्टिकल, एंड वी आई एंड माइनस टू वी जे, वी आई मीन्स आई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है यहां पर, इट इज v, और माइनस टू जे, जे इज दिस डायरेक्शन, माइनस जे इज दिस डायरेक्शन, and 2v means here the velocity measured at q is minus 2vj respectively. Which of the following statements and are correct? IIT का क्वेश्चन है, पहले आ चुका है, इसमें मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। क्या इसके ऊपर कॉन्सेप्ट है, देखिए पार्टिकल अंदर की तरफ आया, यहां पर इसके पास में दो फील्ड के कारण से फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल चल रहा है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, इट इज इक्वल टू q इंटू E, दिस इज द फोर्स। फिर यहां से इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो इस तरह से दिखाई गई है, सर्कुलर ऐसे, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण से वो टर्न आउट हो रहा है, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन नहीं है, और जितनी भी उसने वेलोसिटी गेन की यहां तक आते आते ये कितनी हो गई, 2v। द फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टू ओनली चेंज द डायरेक्शन। Magnetic field cannot accelerate the charged particle because the direction of magnetic force is always perpendicular to the charge direction motion. So अगर velocity 2v हुई भी है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही हुई है, मैग्नेटिक फील्ड का इसमें कोई रोल नहीं है। और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगा है, QE। सो मैं लिख सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू mass into acceleration. What is acceleration? Acceleration is QE by m. This is the nature electrical acceleration it is. Now because of this acceleration velocity v से बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई है, 2v। इस पाथ में तो कोई वेलोसिटी चेंज हुई नहीं होगी, और ये जो पाथ है इट इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर में भी कोई फील्ड में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि सभी जगह पर सेम पोटेंशियल है। सो केवल यहां से चल करके यहां तक ही वेलोसिटी 2v हो चुकी होगी, देन द पार्टिकल टेक्स द टर्न। दूसरा, ये a है, ये 2a है, अगर ये और ये a दोनों a होते तो भी हम कह सकते थे कि पार्टिकल ऐसे घुमा है, दिस इज 1/4 ऑफ द सर्किल, दिस इज ए, पर ऐसा नहीं है, ये 2a है, ये a है, इसका मतलब कुछ पोर्शन इसका स्ट्रेट है, फिर टर्निंग है a की, और फिर स्ट्रेट है, इस तरह से ये पाथ है। एनीवे, सो व्हाट इज द फॉर्मूला नाउ, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म्स में फाइंड आउट करना है। सो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 2v, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, u इज दिस, प्लस 2a, एक्सेलरेशन कितना है, QE बाई m, 2a इंटू s, डिस्टेंस कवर्ड कितना है पार्टिकल ने, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड में इसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, 2a। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, यहां से यहां तक इतना, इस लेंथ वाइज। परपेंडिकुलर कितना कवर किया है, a, पर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलती है परपेंडिकुलर मोशन से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, सो मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, इट इज 2a डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब इसको सॉल्व करिए, 4v स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2 2 4QEA बाई m, transfer it to the left hand side, 3v square is equal to 4QEA by m. What is E from here? Electric field intensity from here is 3 by 4 v square into m. It is mv square divided by QA. This is first your answer. Answer is A. But we should check more than one answers. B part of the question is given as rate of work done by electric field at P is. We have to find out the rate of work done at this point. So normal condition, what is work done? Force into displacement. Rate means divided by T, that is equal to force into what is displacement upon time, it is velocity. आपको ये पता करना है कि इस पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर, इट इज गिवन एज Q इंटू E इंटू V, बट E अभी हमने कैलकुलेट किया, व्हाट इज इट, 3 by 4 mv स्क्वायर अपॉन A, QA. So we just put the value, Q cancel out, rate of work done is 3 by 4 mv cube upon A. C part is there,
rate of work done by electric field at P is 0. No, it is not 0. Delta, rate of work done by both the field at Q is 0. Yes, it is again here. मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे भी कोई वर्क करती ही नहीं है, वो तो यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, वर्क डन इज 0. बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसी, पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इट इज परपेंडिकुलर, एंड फॉर एनी फोर्स द कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स at 90 degree is 0. So work done by electric field as well as magnetic field at Q will be 0. So correct answers are A, B and delta. Next concept is Biot-Savart's law or Ampere's theorem or Laplace law. It is given in the year 1820. Magnetic field due to a current carrying element. एक वायर में जब करंट फ्लो होती है देन इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. द नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर, सेंटर ऑफ द सर्किल इज वायर इटसेल्फ. नाउ ये तो बताया ओरस्टेड ने कि वेन एवर करंट फ्लोज इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. एम्पियर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय थंब रूल. लेकिन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर? मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, it relating current and magnetic field. It is relating electric field with magnetic field. इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म से रिलेट करता हुआ ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है. इट इज कॉल्ड बायट-सैवर्ट्स लॉ और एम्पियर्स थ्योरम और लाप्लास थ्योरम, और इट इज आल्सो कॉल्ड, दो साइंटिस्ट है बायट एंड सैवर्ट, उनका लॉ है. ये बोलते हैं कि जिस वायर में करंट जा रही है उसका एक छोटा सा सेगमेंट आप कंसीडर करिए. Small segment. What is the length of this small segment? dl. Direction of current. Although current is a scalar quantity, पर यहां पर एक टेंजेंट बनाइए. This tangent, इसको एक यूनिट वेक्टर से डिनोट करिए, इस डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर, and you should say the direction of current is in this segment is tangential. This is the direction. Because of this small segment, magnetic field here, small magnetic field produces at this point, say this is dB. What is the distance? This distance is r, मान लीजिए. So ये बोलते हैं कि ये जो small magnetic field है dB, it is proportional to, first point, the magnetic field is proportional to current. dB is proportional to current flowing in the segment. Say the current flowing is I ampere. Second point, the field is proportional to length of the current carrying element. dB is proportional to current carrying element is of length dl, small segment, it is proportional to dl. Third is dB is proportional to sin theta. If theta is the angle between direction of current, this, and r, position vector, so dB is proportional to sin of theta. What is the meaning of this? If theta is 0, अगर आप इसको decreases on the wire itself, इसी डायरेक्शन में अगर आप लोगे on the wire, तो इसकी फील्ड कितनी बनेगी? 0. अगर ये वायर सीधा होता, इनफाइनाइट लेंथ का वायर होता, so इससे यहां पर तो फील्ड बनती 90 डिग्री पर, पूरी बनती, sin 90 is 1. बट इसको डिक्रीज करते करते जब आप वायर के ऊपर ले आते इस पॉइंट को, इधर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर r. व्हाट इज थीटा? थीटा इज 0. ऑन द वायर इटसेल्फ द मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स इज 0. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खुद वायर के ऊपर फील्ड नहीं बनती, दिया तले अंधेरा. So dB proportional to sin theta, where theta is the angle between r and dl. R is the position vector of the observation point P with respect to the current element. The direction of dl is the direction of flow of current. Fourth point, the field falls off inversely with square of the distance. जितने भी distances हैं उनके inversely proportional field होते हैं. इन सबको अगर आप combine करके लिखेंगे so बोलेंगे dB is proportional to I dl sin theta divided by r square, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो लिखेंगे μ0 μr upon 4 pi. प्रोपोर्शनलिटी साइन I dl sin theta divided by r square. This law is called Biot-Savart's law.
What is mu zero? Mu zero is called permeability of vacuum. Permeability is the magnetic property. Permeability is the magnetic property of the medium by virtue of which it can alter the strength of magnetic lines of forces. Mu r, relative permeability. 4 pi is constant. जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी में एक कांस्टेंट डाला करते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r. It is called absolute permittivity of the vacuum. It is called relative permittivity of the medium. वही चीज यहाँ पर है. ये दोनों चीजें समझ लीजिए ऊपर उठ के आ गई हैं, ये आ गई हैं. तो ये आपका बायट-सैवर्ट्स लॉ कहलाता है. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मार. और अगर आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डाल देते हैं k, तो इट इज KI/dl sin theta divided by r square. B is magnetic field at point P at distance r from the wire. Its unit is Tesla. I is the current flowing in the wire. Its unit is ampere. Mu zero absolute permeability of free space vacuum. Most important, its value is 4 pi into 10 to the power minus 7. Its unit is Henry per meter. ये अभी हम इसके बाद कैलकुलेट करेंगे इसमें हाउ इट इज हेनरी पर मीटर. एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस करना और करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना दोनों आपस में रिलेटेड है. 1820 में चार्ल्स ओरस्टेड ने इसकी डिस्कवरी की थी, करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. सो साइंटिस्ट जो थे वो क्या करते थे, हाउ मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस करंट, रिवर्स प्रोसेस के ऊपर वर्क करते थे. दो लोगों ने इसके ऊपर वर्क किया था, माइकल फैराडे और रॉबर्ट हेनरी. तो माइकल फैराडे को सक्सेस मिल गई थी इस बारे में, तो फैराडेज लॉ आ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के. पर हेनरी के ऑनर में इंडक्शन की यूनिट जो है वो हेनरी डाली गई. तो वहां से अभी हम इसको देखेंगे हेनरी कहां से आई है, बट अभी बाय द टाइम वी शुड मेमोराइज इट. हेनरी पर मीटर. इन सीजीएस इलेक्ट्रोस्टैटिक और सीजीएस गॉसियन सिस्टम K is equal to 1/c. Not important. In CGS electromagnetic or absolute system, K is equal to 1. In SI system, K is equal to mu 0/4 pi. So it can be written as mu 0 in vacuum. Mu r की वैल्यू 1 होती है. mu 0/4 pi I dl sin theta by r square. This is the strength of magnetic field. Because magnetic field is vector quantity, so it can be written as mu 0/4 pi vector form. I, it is dl cross r divided by, it is r cube. Why it is? देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स dl क्रॉस r. dl की डायरेक्शन क्या है, जो करंट की डायरेक्शन है वही dl की डायरेक्शन मानी जाती है. r पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज इट, मैग्नीट्यूड ऑफ r मैग्नीट्यूड ऑफ dl मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ बिटवीन देम, ये दिया हुआ है यहाँ पे, एंड डिवाइडेड बाय, क्योंकि ऊपर आपने वेक्टर लिया है तो नीचे एक पावर आपको ज्यादा लेनी पड़ेगी, दैट इज इक्वल टू r क्यूब. इट इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायट-सैवर्ट्स लॉ. इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. But for solving the numerical, we should use this formula. B is equal to I dl sin theta by r square.